पार्टिसिपेंट को ऐड किया। आप अपना देखिए जरा पेज शो हो रहा है, उसको ऐड करें। क्लास कितने स्टार्ट होगी? 25 बस ठीक है, अभी एडमिट कर देते हैं। आप जब अपना पेज खोल कहाँ से खोलना है? क्लास में जाते भाई पता नहीं है कहाँ गया। कहाँ हुआ था तो नहीं ये आपकी आईडी नहीं आ रही? रिमूव कर दिया आपने? नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ सलाम। नहीं आ रहा। मैं आपको आईडी, मेरा फोन नहीं खोला। इसकी आईडी बताना जरा अपने फोन से यूज कर। ये 8802242289 6। एंटर हो गया टाइम। ये है ना? हाँ जी देखिए आपको स्क्रीन शो हो रही है। नहीं नहीं हो रही शो? आ गई आ गई। एडमिट कर दीजिए। हाँ जी कर दी। म्यूट और Assalamu alaikum students. You can see in the on the screen we are going to start the novel The Three Students. This is a story from the adventures of Sherlock Holmes. You might have heard about Sherlock Holmes. He was a character of detective stories. You might have seen its movies as well as read about its stories or novels. It's a character who used to detect about crimes. Along with his assistant Dr. Watson, both of them, they were good at solving crimes, and Holmes could easily detect the crimes which police was
unable to do. Students, keep your cameras off. If I find anyone, I will remove him from the class. The story, The Three Students, is a story relating to the students. First of all, I will tell you about the story. The story happened a few years ago in a town in England where there is a famous university. What happened in the story? There was going to held the paper, the exam for test scholarship exams. As you know, scholarship exams are important because the winner was going to get the prize, a large amount of money as a scholarship. Just like you all get, many of you get Shahnaz scholarship in your school at your result. Similarly, there was going to be the examination for test scholarship examination, and the winning student was going to get a large amount of money for his studies at the university. So the exams was very important, but the last day before the exam, a problem was created. There happened a problem. And what was the problem? Someone copied the paper from the teacher's room, and he was worried about that. Now I'm going to start reading the story. This story happened a few years ago in a town in England where there is a famous university. ये स्टोरी इंग्लैंड के एक टाउन की है जहाँ पे एक फेमस यूनिवर्सिटी है, फेमस, मशहूर. At that time we were staying in a small hotel near the university library. और उस टाइम पे Sherlock Holmes along with his assistant Abdullah Akil, close your camera. Holmes was working in the library for a few days और Sherlock Holmes अपने assistant डॉक्टर वॉटसन के साथ वहाँ पे कोई रिसर्च वर्क के सिलसिले में आए हुए थे और वो कोई काम कर रहे थे. And when we came back to our hotel one evening, Mr. Wilson Soames, a teacher at the university, was waiting for us. और एक दिन जब वो अपने होटल वापस आए, लाइब्रेरी में अपना रिसर्च का काम करने के बाद वो होटल वापस आए, a person was waiting for them. Who was waiting for them? That was a teacher of that famous university. Who was that? That teacher was Mr. Wilson Soames. Mr. Wilson Soames was waiting for Sherlock Holmes. Both Holmes and I had met him on other visits. तब वो पहले भी Holmes and I had met him. यानी Holmes, Sherlock Holmes और Watson, they had already met him. पहले भी मिल चुके थे उससे, पहली बार नहीं मिल रहे थे बल्कि इससे पहले भी मिल चुके थे. Usually he was a friendly person. Friendly, happy man. अब Mr. Wilson Soames. What about Mr. Wilson Soames? Mr. Wilson Soames एक friendly शख्स था, but this time he looked very worried. आम तौर पे वो खुश रहता था, अच्छे मूड में, हैप्पी मूड में होता था, लेकिन इस वक्त वो उन्हें काफी worried लगा, परेशान लगा. He asked if he could talk to us about something which was very important. और उसने हमें पूछा कि क्या वो अपने किसी इम्पोर्टेंट मैटर को हमसे डिस्कस कर सकता है. और उसका मैटर क्या था, उसने कैसे स्टार्ट किया. आई एम वेरी लकी दैट यू आर विजिटिंग द यूनिवर्सिटी दिस वीक मिस्टर होम्स. कि मिस्टर होम्स, मैं बहुत लकी हूँ. लकी मीन फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत, कि आप इन दिनों इस वीक, WEE के वीक होता है हफ्ता, 7 days ऑफ वीक,
सेट ऑफ 7 days ऑफ वीक, और इसी का एक और सिनोनिम भी होता है WEAK, वीक, दैट इज कमजोर। अब यहाँ है, उसने कहा कि मैं आपको इस वीक आप यहाँ विजिट कर रहे हैं, सो आई एम वेरी लकी, समथिंग वेरी बैड हैज हैपेंड, कुछ बहुत बुरा हुआ है, एंड आई नीड योर हेल्प, और मुझे उसमें आपकी मदद की जरूरत है। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, और वाकई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, यानी मेरे साथ कुछ ऐसी हैपनिंग हुई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बिकॉज पहले कभी उसे ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा था। Holmes asked him to sit down and to tell us about it. होम्स ने उसे पहले थोड़ी तसल्ली दिलाई, उसे काम किया और उसे कहा बैठो, एंड देन टेल अस, और फिर बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। He quickly began to tell us his story. अब वो चूंकि प्रॉब्लम में था, परेशान था, तो उसने जल्दी जल्दी बैठते ही जल्दी जल्दी क्विकली जल्दी से अपनी स्टोरी बताना शुरू की। You see, Mr. Holmes, tomorrow is the first day. Tomorrow is the first day of the examinations for the Fortescue Scholarship. कल पहला दिन है। Tomorrow mean आने वाला कल। The first day of the examination, कल पहला दिन है examination का, for the Fortescue Scholarship. The student Fortescue Scholarship is the name of a scholarship. The student who wins this scholarship, और जो student ये prize, ये scholarship win करेगा, will get a large amount of money. उसको बड़ी amount मिलेगी, उसको बहुत सी रकम मिलेगी। will get a large amount of money for his studies at the university, और उसे अपनी यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए एक बड़ी अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी, बहुत सी रकम मिलेगी। आई टीच द ग्रीक लैंग्वेज हियर। अब मिस्टर विल्सन सोम्स ने क्या बताया कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में ग्रीक लैंग्वेज टीच करता हूँ, एंड दिस इज वन ऑफ द पेपर्स इन द एग्जामिनेशन, और सुबह ग्रीक का ही पेपर है। There is a passage of Greek which the students have to write out in English. Of course, if a student saw the paper before the examination, it would be very easy for him to translate it from Greek into English. जैसे आप लोगों के पेपर में, लैंग्वेज के पेपर में, उर्दू मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में आपको पैराग्राफ और सेंटेंसेस गिवन होते हैं which you have to translate into English. इसी तरह उस ग्रीक के पेपर में भी द स्टूडेंट्स विल बी गिवन द पैसेज ऑफ ग्रीक, जिसे स्टूडेंट ने दे हैव टू ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश। स्टूडेंट्स ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, और उसने कहा कि वो चूंकि अनसीन पैसेज उसने दिया था, अनसीन पैराग्राफ दिया हुआ था, और अगर कोई स्टूडेंट उस पैराग्राफ को पहले देख लेगा तो उसके लिए इट वुड बी वेरी इजी फॉर हिम टू ट्रांसलेट इट, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको ट्रांसलेट करना। अगर उसने पहले से देखा हुआ है तो वो उसके वोकैबुलरी वर्ड्स देख सकता है, उसको नहीं भी आते तो वो किसी डिक्शनरी से देख सकता है, किसी से पूछ सकता है हेल्प लेके, वो पहले उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सकता है। तो it would be very easy for him to translate it from Greek into English. Well, last week the examinations for papers were sent to the printers for printing. और उसने कहा कि पिछले हफ्ते पेपर एग्जामिनेशन पेपर्स को यानी क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंटर के पास भिजवाया गया था प्रिंटिंग के लिए, और टुडे एट अबाउट 3 o'clock दे केम बैक, और आज तकरीबन 3 बजे वो पेपर्स वापस आए, यानी प्रिंटर से मुझे पेपर वापस आए। किस लिए वापस आए? प्रिंटर ने मुझे भिजवाए थे प्रूफ रीडिंग के लिए। दे नीड टू बी करेक्टेड एंड चेक, और करेक्टेड एंड चेक होता है प्रूफ रीडिंग करना, यानी उनको एक बार देखना कि कहीं उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई और गलती तो नहीं है, कोई कॉम्पोजिशन मिस्टेक, तो उसको चेक करने के लिए मेरे पास आए। आई हैड टू रीड द ग्रीक पैसेज केयरफुली, और मुझे ग्रीक पैसेज को केयरफुली
एहतियात के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ना था। टू सी इफ द प्रिंटर्स हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, ये देखने के लिए, टू सी, टू चेक कि प्रिंटर ने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी थी। आई वॉज वर्किंग ऑन इट दिस आफ्टरनून, और आज दोपहर मैं इसी पर काम कर रहा था। अब उसने बताया कि उसके पास प्रिंटर से पेपर आए और वो उनको चेक कर रहा था। अब मीनवाइल क्या हुआ? Someone is cheating. The next passage start. I live at the university in one of the colleges where there are rooms for both the teachers and the students. और उसने कहा कि मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जहाँ पर ना सिर्फ टीचर्स रहते हैं, टीचर्स को रूम अवेलेबल हैं टीचर्स के लिए, बल्कि स्टूडेंट्स भी वहाँ स्टे करते हैं, यानी हॉस्टल है, सम सॉर्ट ऑफ हॉस्टल भी है उसमें साथ ही, जहाँ स्टूडेंट्स भी स्टे करते हैं और टीचर्स भी। एट 4:30, यानी आज शाम 4:30, 4:30 बजे, आई हैड प्रॉमिस टू हैव टी विद वन ऑफ द अदर टीचर्स इन हिज रूम्स। मैंने 4:30 बजे किसी और टीचर से प्रॉमिस कर रखा था कि उनके साथ शाम की चाय इकट्ठे लूंगा। I left the examination paper on my desk. I was away for about an hour. और मीनवाइल क्या हुआ कि जब वो पेपर्स चेक कर रहा था जो प्रिंटर से आए थे, उन पेपर्स को चेक करते हुए टाइम हो गया 4:30 का, और सो ही लेफ्ट द एग्जामिनेशन पेपर। उसने एग्जामिनेशन पेपर्स को अपने डेस्क पर, अपनी टेबल पर छोड़ा और चला गया अपने रूम को लॉक करके। वो उस अपने कुलीग के पास चाय पीने के लिए, उसके साथ इकट्ठे चाय पीने के लिए चला गया। I was away for about an hour. मैं तकरीबन 1 घंटे बाहर रहा। When I returned to my rooms, जब मैं अपने रूम्स वापस आया, I was surprised to see, मैं हैरान था। Surprised mean हैरान, amazed, shocked. To see there was a key in the keyhole, कि दरवाजे पर चाबी लगी हुई थी। की होल में, दरवाजे का जो की होल है उसमें चाबी थी। I thought that, अब मैंने सोचा that perhaps I had left my own key in the door, कि मैं शायद शायद मैंने सोचा कि शायद I had left my own key, कि मैंने अपनी की छोड़ दी है, भूल गया हूँ in the door, but no, my key was in my pocket. जब मैंने चेक किया तो मेरी अपनी की मेरे पॉकेट में थी। The only other key to the rooms, इस रूम की दूसरी की, यानी जो डुप्लीकेट की थी, वो किसके पास थी? Belongs to my servant Bannister, और इस रूम की दूसरी की मेरे सर्वेंट बैनिस्टर के पास थी। Bannister has worked for me for 10 years. बैरिस्टर मेरे पास 10 साल से काम कर रहा है। And I know he is very honest, और मुझे पता है कि वो बहुत ऑनेस्ट है। The key was his, की उसी की थी। अब यानी उस कमरे की 2 कीज थी। जैसे आप होटल में कहीं जाके स्टे करते हैं तो आपको भी वहां डुप्लीकेट कीज होती हैं, एक वो आपको देते हैं, एक उनके पास होती है। जब आप बाहर होते हैं तो पीछे आके उनके मेट्स सफाई वगैरह कर जाते हैं। तो उसने सोचा कि दूसरी की तो बैनिस्टर के पास है। Bannister has worked for me for 10 years. Bannister मेरे साथ 10 सालों से मेरे पास काम कर रहा है, and I know he is very honest. और मुझे पता है कि वो बहुत honest है। The key was his, और ये की उसी की थी। He told me he had gone into my rooms to ask me if I wanted tea. बेटा म्यूट करें, किसका अनम्यूट नहीं है, म्यूट करें अपना। He had forgotten, he told me he had gone into my rooms to ask me, उसने मुझे बताया कि वो मेरे कमरे में गया था मेरी एब्सेंस में मुझसे चाय का पूछने के लिए। If I wanted tea, कि मुझे चाय का पूछने के लिए गया था। He had forgotten to take out the key when he came away, और उसने कहा कि वो रूम से की निकालना भूल गया है, यानी डोर से
डोर के की होल से वो की निकालना भूल गया था. He had gone to my rooms just a few minutes after I left. और उसने ये भी बताया कि वो मेरे कमरे में गया था just a few minutes, just सिर्फ only a few minutes after, चंद मिनट बाद I left, मेरे जाने के, कि मेरे जाने के चंद मिनट बाद, वही टी टाइम था ना, तो वो पूछने के लिए आया चाय का, और अपनी जाते हुए अपनी की वहां डोर में लगी भूल गया. As soon as I went in, जैसे ही मैं अंदर गया, I saw, मैंने देखा, that someone else had been in the room, कि कोई और भी कमरे में आया था. had been in the room, कमरे में रहा था, यानी उसके जाने के बाद, मिस्टर विल्सन सोम्स के जाने के बाद कोई और शख्स भी कमरे में आके रहा था. and had looked at the examination paper, और उसने examination paper देखे थे. अब उसे कैसे पता चला एग्जामिनेशन पेपर किसी ने देखे हैं? The examination paper was on 3 sheets of paper when I got it from the printers. अब उसने बताया कि जब प्रिंटर से मेरे पास एग्जामिनेशन पेपर आए, तो वो एग्जामिनेशन पेपर 3 पेजेस के थे, यानी 3 पेजेस का वो क्वेश्चन पेपर था. When I left, they had been all together on my desk. और जब when I left, जब मैं छोड़कर गया, जब मैं छोड़कर गया, they had been all together सब इकट्ठे थे on my desk, मेरी टेबल पर. और उसने कहा कि जब मैं वहां से गया तो मेरी टेबल पर वो सब पेपर्स इकट्ठे पड़े थे. When I returned, लेकिन जब मैं वापस आया, one of them, लेकिन जब मैं वापस आया, one of them was laying on the floor, एक उनमें से एक फर्श पर पड़ा था. one was on the small table near the window, और एक छोटी टेबल पर जो खिड़की के नजदीक थी उस पे पड़ा था. and the third was where I had left it, और तीसरा पेपर वहीं पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था. अब बिकॉज उसकी विंडोज जो थी वो शट थी, विंडोज बंद थी, क्लोज थी, और कमरे में बगैर किसी के छेड़े जब वो टेबल पे 3 पेपर्स इकट्ठे छोड़ के गया, तो हाउ वाज इट पॉसिबल कि एक पेपर खिड़की के पास पड़ा हो, एक पेपर नीचे गिरा हो, और थर्ड पेपर पेज जो था वो सिर्फ वहां पे था जहां वो छोड़ के गया था. इट मींस वहां पर उसकी एब्सेंस में यकीनन कोई आया था और उसने उन पेपर्स को उठाकर देखा. होम्स लुक्ड अप. अब इस बात पर होम्स थोड़ा चौंका, परेशान. कहा, बेटा दोबारा मैं कहूंगी नहीं, आई विल रिमूव यू. पेज 1 was on the floor. पेज 1 यानी जो पहला पेज था पेपर का वो उस फर्श पर पड़ा था. पेज 2 was near the window. सेकंड पेज खिड़की के पास था. और पेज 3 was where you left it. और अब होम ने जब जो ये सारी बात सुन रहा था उसने कहा कि क्या ऐसा था कि पहला पेज फर्श पे गिरा हुआ था, सेकंड पेज खिड़की के पास वाली टेबल पर था, और थर्ड पेज वहीं पर था जहां तुमने छोड़ा था. That's right. बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक हैं मिस्टर होम्स. बट हाउ डिड यू नो दैट? लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? प्लीज गो ऑन विद योर स्टोरी मिस्टर सोम्स. अब होम्स चूंकि एक डिटेक्टिव था, सो उसने इन चीजों को असेस किया, इनके बारे में अंदाजा लगाया कि पेपर्स ऐसी तरतीब से हो सकते हैं, और फिर उसने उसे कहा कि मुझसे सवाल करने के बजाय आप अपनी स्टोरी को, अपनी बात को कंटिन्यू करें. गो ऑन विद योर स्टोरी, अपनी बात को, अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखें. At first I thought Bannister had looked at the papers. अब उसने कहा पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि शायद बेनिस्टर ने इन पेपर्स को छेड़ा है, उनको देखा है. But he told me he hadn't touched anything. लेकिन बेनिस्टर ने मुझे बताया कि उसने
किसी चीज को नहीं छेड़ा, यानी बेनिस्टर ने उसके कोई पेपर्स नहीं छेड़े। एंड आई एम श्योर ही वाज टेलिंग द ट्रुथ, एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है कि वो सच बोल रहा था। नो, आई थिंक समवन एल्स सॉ द की इन द डोर। और अब उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि किसी और ने, समवन एल्स, कोई और, सॉ द की, किसी और ने की देखी, इन द डोर, किसी और ने डोर में की देखी, न्यू, और उसे लगा दैट आई वॉज आउट, कि मैं रूम से बाहर हूँ। एंड ही वेंट इन टू लुक एट द पेपर्स, और वो अंदर आया और उसने पेपर्स देखे। नाउ दैट ही हैज सीन द पेपर्स, और अब उसका प्रॉब्लम क्या था मिस्टर विल्सन सोम्स का? उसने कहा कि जिस शख्स ने पेपर देख लिया है, दैट पर्सन विल इजीली पास द एग्जामिनेशन, तो वो पर्सन एग्जाम को इजीली पास कर सकता है। ही विल विन द स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप भी विन कर जाएगा, एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट गोज विद इट, और उस स्कॉलरशिप के साथ उसको बड़ी अमाउंट भी मिल जाएगी, पैसों की बड़ी अमाउंट भी मिल जाएगी। बेनिस्टर वाज वेरी वरिड, बेनिस्टर बहुत परेशान था। वरिड मीन परेशान। व्हेन आई टोल्ड हिम, जब मैंने उसे बताया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है, ही सेड ही फेल्ट क्वाइट इल, उसने कहा कि वो काफी बीमार महसूस कर रहा है। एंड ही हैड टू सिट डाउन, और वो इतना चकरा गया, उसकी तबीयत इतनी खराब होने लगी कि उसके लिए खड़ा रहना मुश्किल हो गया। एंड ही हैड टू सिट डाउन, और वो बैठ गया। कि जब मैंने बेनिस्टर को बुलाया, उससे पूछा, तो उसकी तबीयत काफी खराब हो गई और वो बैठ गया। आई लुक केयरफुली अराउंड द रूम, अब मिस्टर विल्सन सोम्स ने कमरे में इर्द गिर्द देखा कि कोई और चीज, कोई और चेंजिंग नोट करने के लिए, टू नोट सम अदर चेंजेस इन द रूम, कि कहीं कोई और चीज हो जिससे उसको पता चले कि यहाँ पे क्या हुआ है उसकी एब्सेंस में। I found several things that might help us find the person who are looking for. और उसने कहा कि जब मैंने कमरे में जायजा लिया, इधर उधर देखा, तो मुझे कई चीजें ऐसी मिली जिनसे मुझे हेल्प मिल सकती है ये देखने में कि उस पर्सन को ढूंढने में, might help us find the person, उस शख्स को ढूंढने में, we are looking for, जिसको वो ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा था? जो उसकी एब्सेंस में उसके रूम में आया और उस पेपर को देखा। अब उसको क्या चीजें मिली? ऑन द टेबल नियर द विंडो समवन हैड शार्पन्ड अ पेंसिल, खिड़की के करीब वाली जो टेबल थी, बाय द विंडो जो टेबल थी, उस पर उसे पेंसिल शार्प करने के बाद जो वुड के पीसेस हैं, जो छिलका, जो वुडन पीस हैं, वो वहां से उसको मिले। There were several fresh small pieces of wood. Several mean कई, many. Several many कई, कई उसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े मिले जो पेंसिल तराशने के बाद, पेंसिल शार्प करने के बाद ऊपर से उतरता है। Cut from the pencil on the table, जो टेबल पर गिरे हुए थे। The person had tried to copy. अब उसे लगा कि उस पर्सन ने, जो वहां आया था, उसने पेपर को ना सिर्फ देखा बल्कि उसने कॉपी किया था, और वो पेपर को कॉपी कर रहा था सो क्विकली, इतनी जल्दी जल्दी, दैट हिज पेंसिल हैड ब्रोकन, कि उसकी पेंसिल टूट गई। देयर वाज अ ब्रोकन पीस ऑफ ब्लैक पेंसिल लेड ऑन द टेबल टू, बिकॉज वहां टेबल पर एक पेंसिल का टूटा हुआ पीस भी उसे मिला, कि उसकी पेंसिल का लेड मोटा हो गया। फिर उसने पेंसिल शार्प भी की, और वो चूंकि तेजी में लिख रहा था, इतनी जल्दी में था, इतनी टेंशन में था, कि उसकी पेंसिल भी टूटी और उसका एक पीस वहां पे गिरा रह गया। एंड दिस इज नॉट ऑल, और सिर्फ यही सब नहीं। आई हैव अ न्यू राइटिंग डेस्क इन माई रूम, मेरे कमरे में एक नया राइटिंग टेबल था। एंड आई फाउंड अ क्लीन कट अक्रॉस द टॉप ऑफ इट, जो उसका सेंटर टेबल, जो राइटिंग डेस्क था जिस पर पेपर पड़े थे, उस पर एक उसे कट, एक स्क्रैच, ही फाउंड अ क्लीन कट, एक उसको स्क्रैच, एक कट भी नजर आया उसकी टॉप पर, अबाउट 3 इंचेस लॉन्ग, 3 इंच लंबा।
And on the table I found a little ball of soft black earth mixed together with sand. और उसे टेबल पर मट्टी के साथ रेत मिली हुई, सॉफ्ट ब्लैक अर्थ, सॉफ्ट ब्लैक क्ले, मिट्टी, अर्थ मीन सॉइल, मट्टी, जिसमें सैंड मिली हुई थी, रेत मिली हुई थी, वो उसको टेबल पर मिली. Isn't that strange? क्या ये स्ट्रेंज नहीं है? I can't understand it. मैं ये नहीं समझ सका. Then I remembered you were in town. और फिर मुझे याद आया कि आप आजकल टाउन में आए हुए हैं, इस शहर में आए हुए हैं. So I came straight here to ask you for your help. और इसलिए मैं फौरन आपके पास, I came straight to, मैं सीधा आपके पास आया. Straight means सीधा, to ask for your help, आपकी हेल्प के लिए. I must find the student who looked at the examination papers. और मुझे उस स्टूडेंट की तलाश है जिसने एग्जामिनेशन पेपर को देखा, चीट किया, मिस्टर होम्स, और वी कैन नॉट हैव द एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर मुझे वो शख्स ना मिला, वी कैन नॉट हैव द एग्जामिनेशन टुमारो, तो हम कल एग्जामिनेशन नहीं ले सकते, यानी कल वाला पेपर हमें कैंसिल करना पड़ेगा. अब उसका प्रॉब्लम ये था कि चूंकि अगर उसको जब तक वो पेपर, उसकी एक सीक्रेसी है, एक राज है, एक अमानत होता है, और वो लीक हो चुका है, किसी को उस पेपर का पता चल चुका है, और जब अगर उस शख्स के बारे में उसे पता चल जाता है तो ठीक, अदरवाइज उसको वो पेपर कैंसिल करना पड़ेगा. बिकॉज ही वॉज एन ऑनेस्ट टीचर, ब्यूटीफुल टीचर था, और वो किसी तरह भी ये नहीं चाहता था कि उसका पेपर लीक हो, और या ये स्कॉलरशिप की अमाउंट किसी अनडिजर्विंग शख्स के हाथ में जाए. इसलिए उसने कहा कि अगर होम्स, शर्लक होम्स से कहा कि अगर आप इस शख्स को ढूंढ नहीं सके तो फिर मुझे कल का पेपर कैंसिल करना पड़ेगा. और आप होम्स उसे तसल्ली देगा कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा. नाउ इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, रेज योर हैंड्स and I will unmute you. Yes. Rayan Kashif, unmute yourself. Yes. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस. जी वालेकुम अस्सलाम. मिस ये जो असाइनमेंट है हमारे, जी मिस ये जो है स्कूल ट्रिप, मिस ये हमने क्वेश्चन के साथ लिखने हैं? नहीं बेटा, क्वेश्चन के साथ नहीं लिखनी. उसमें क्वेश्चन तो आपको पॉइंट्स दिए, उन पॉइंट्स को आपने बयान करना है, क्वेश्चन नहीं लिखने. उन पॉइंट्स पे एक एक पैराग्राफ लिखते जाएं. किसी पे 4 लाइनें आएंगी, किसी पे ज्यादा लाइनें आ जाएंगी. मतलब उन पे आपने, उन लाइंस को, उन पॉइंट्स को आपने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है. ठीक है? मिस ये ऐसे की तरह लिखना है? हाँ जी, ऐसे की तरह लिखना है. यानी एक एक बात को आपने 3-4 लाइंस में या एक पैराग्राफ में बयान करते जाना है. और इस तरह जब आप एक एक हर पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, यू विल हैव अ कंप्लीट एसे. ओके, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? मरियम नदीम, अनम्यूट योरसेल्फ. मरियम नदीम जी बेटा. अस्सलाम वालेकुम मिस. वालेकुम अस्सलाम. मिस मैंने आपसे पूछना था कि ना ये ग्रीक एक लैंग्वेज है? जी बेटा, ग्रीक लैंग्वेज है. ग्रीक यूनान की लैंग्वेज है. ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ ग्रीस. ग्रीस कहते हैं यूनान को. यूनान में जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज कॉल्ड ग्रीक. जैसे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, इसी तरह ग्रीस, यूनान एक मुल्क है और वहां पे ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है. ग्रीक फिलॉसफी आपने सुना होगा. और मतलब ग्रीस. मिस जी वो ना मेरी लाइट चली गई थी पहले लेक्चर में, तो मैंने मिस तहरीम का लेक्चर नहीं लिया था, तो आप उन्हें कह देंगी? बेटा, वो तो अटेंडेंस जैसे आपकी आई है ऐसे ही कैलकुलेट होगी. ठीक है? वैसे मैं कह दूंगी उनसे, कल कह दूंगी. ओके मिस. ठीक है जी. समवन एल्स? ईमान बेटा. ईमान, अनम्यूट योरसेल्फ. ईमान काशिफ जी बेटा, क्या पूछना है?
जी महनूर, महनूर अनम्यूट योरसेल्फ। महनूर, जुल्फिकार, रामीन, बेटा अनम्यूट करें। अस्सलाम और वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? टीचर मैंने आपसे पूछना था, यहाँ पे जो पेज नंबर 27 है, यहाँ पे नीचे लाइन में लिखा हुआ है ही सेड ही फेल्ट क्वाइट इल एंड ही हैड टू सिट डाउन। टीचर मुझे इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया। He said he felt quite ill, यानी उसने कहा, अब उसने जब बैनिस्टर को बुला के पूछा कि क्या तुम ये की भूल के गए हो, और उसने कहा कि हाँ मैं ही की भूल गया हूँ, अपनी मेरे पास नहीं है, और वो जाते में की भूल गया। और फिर जब उसने उसे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पेपर पड़ा था मेरा, क्वेश्चन पेपर कल के पेपर का, और उस की वजह से अंदर कमरे में कोई आया और उसने पेपर यहाँ से कॉपी किया है, तो बेनिस्टर काफी परेशान हुआ। क्या? ही फेल्ट क्वाइट इल, वो इतना परेशान हुआ कि वो चकराने लगा और उसके लिए खड़ा रहना मुश्किल हो गया और वो बैठ गया। ही सैट ऑन अ चेयर बाय द विंडो, और वो वहां विंडो के करीब वाली चेयर पर बैठ गया। ठीक है, ठीक है टीचर, थैंक यू। ओके जी। एनीबडी एल्स? तकवा नदीम, जी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। मिस, ये स्टार्ट में ना जब आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ था जी तो बेटा। मेरा ना जूम को कुछ हुआ था तो वो बंद हो गई थी, मीटिंग कैंसिल हो गई थी। जी, तो आपका तो वो लेक्चर मैंने मिस स्टार्ट हुआ है? वाला, जी, हाँ जी, वो बेटा अब उसको तो मैं नहीं कर सकती। अगर आपको कहीं स्टोरी सिंपल ही है, अगर आपको कहीं से नहीं समझ आ रही तो वो मुझसे आप पूछ लें। वैसे तो सिंपल स्टोरी है, आप पढ़ेंगे आपको इजी है, समझ आ जाएगी। चलिए ठीक है, फिर मैं अपनी बहन से समझ लूंगी। ठीक दो है, चीज आप ना उसको खुद पढ़ें। अभी अगर कोई से। डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा। बाकी इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया और उसमें आपने देखा कि जो टीचर है मिस्टर विल्सन सोम्स, वो अपनी प्रॉब्लम लेके शर्लक होम्स के पास आया है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया है। अभी आगे होम्स ने उसकी प्रॉब्लम कैसे सेटल करनी है ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ द टाइम इज अबाउट टू ओवर बेटा। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।